Praise the Lord. This is Heart of Worship presents Baatcheet, and this is Pastor Vicky Samuel, your host. And today we've got two special guests with us in the studio. लेकिन आज हम कोई आपके आगे एक कोई ऐसा टॉपिक या कोई स्टडी नहीं लेके आए, बल्कि आज आज हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं हार्ट ऑफ वर्शिप. Both the title Heart of Worship, but what is really behind Heart of Worship? What is Heart of Worship? ये कैसे शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ और who actually started it as well. So without further ado, I just want to introduce to you the visionary and his co-visionary behind this whole Heart of Worship project, which is Harun Yusuf and brother Asher Divan. Thank you so much, guys, for being with us. And I just want to ask you guys, what is Heart of Worship? Harun, tell us. Praise God. Thank you so much, Pastor Vicky Samuel, for giving us this opportunity so we can share कि Heart of Worship क्या है. जैसा कि नाम से जाहिर है, Heart of Worship, it's linked with your heart. और जिस तरह खुदावंद का कलाम कहता है कि वो ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करे. और एक शख्स के लिए खुदावंद ने बाइबल में कहा कि मुझे मेरे दिल के मुआफिक एक शख्स मिल गया, और वो शख्स था दाऊद. And you know, one of the speciality of King David was that he was a worshipper. Amen. वो खुदा की worship करता था. So hence this is Heart of Worship. Great. Asher, Heart of Worship. Yeah, actually, I had the same thing like what Harun shared about King David, कि खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें, और खुदा हमें भी ऐसी ही परस्तिश देखता है. हम जबकि खुदा के काम को करते हैं कि हम भी रूह और सच्चाई से परस्तिश करें, और हम ऐसी परस्तिश करें जो खुदा के दिल के मुआफिक है, जो उसको पसंद आए. ना कि जो सॉन्ग्स हम गाते हैं, जो परस्तिश हम लोगों के लिए नहीं बल्कि खुदावंद के दिल के मुआफिक हम खुदा की परस्तिश करें. Praise the Lord. And obviously, this title, Heart of Worship, became our title. हमारी movement का नाम Heart of Worship जो है हमने obviously decide किया कुछ साल पहले. लेकिन ये शुरू से obviously we did not call it Heart of Worship. So I want to ask you, Harun, just tell us a little bit, how did Heart of Worship start? ये कब और कैसे शुरू हुआ? So praise God. Initially God gave us a vision which was long time ago. बहुत साल पहले, तकरीबन 2014 में खुदा ने मेरे दिल में डाला कि हम आरिफ भाई के साथ मिलके, आरिफ रोजर भट्टी जो हमारे लीडर भी हैं हार्ट ऑफ वर्शिप में, उनके साथ मिलके हम एक मूव को स्टार्ट करें, एक खिदमत को स्टार्ट करें जिसमें हम खुदा उनके कलाम को लेके दुनिया के कोने कोने तक जा सकें. एंड ऑब्वियसली आई वाज लिविंग इन यूके, सो आई थॉट कि उनको पहले यहाँ पे लेके आया जाए. और बहुत सारी हर्डल्स के बाद, बहुत सारी रुकावटों के बाद, बहुत सारी रिजेक्शंस के बाद, जिसमें वीज़े की रिजेक्शंस हैं, लोगों की रिजेक्शंस शामिल हैं, इन 2018 God brought us together in this land, and God gave us this name through my wife Michelle, जो था Sound of Worship. Previously Heart of Worship was known as Sound of Worship. So for a long time we have been operating as Sound of Worship, but last year God gave us this name. Okay, you can make a sound of worship, you can make sound of music, but if it is not from heart, Yeah, very good. then it is not acceptable to God. Very good. So it was a prophetic name that God gave us in prayer, जिसमें I believe आप भी शामिल थे पास्टर विकी, Yes, of course. और खुदावंद ने आपके वसीला से हमसे ये बातचीत की, और इसमें हमें खुदावंद ने कहा कि now you will be called Heart of Worship. Praise God. Praise God. Glory to God. So back in 2014, Asher, you were involved as well, but I know from 2018 आप भी इसके साथ इस विजन में शामिल हुए. Exactly. Tell us a little bit about your experience. ये कैसे शुरू हुई? या हारून, ब्रदर हारून के साथ मेरा बचपन से वी आर टुगेदर, वी ग्रू अप टुगेदर, और हारून वाज द गाय एक दूसरे के साथ आप खेलते रहे हैं. बिल्कुल बचपन में हमारा इकट्ठे गुजरा है बिल्कुल. और हारून ने मुझे, जब मैं इवन वाजंट बॉर्न अगेन, ही इज द गाय हु यूज्ड टू एनकरेज मी to go to church, and I used to go with him to different churches to lead worship. So मेरे अंदर passion initially जब मैंने music start किया तब से था, and उसके बाद then Harun moved to UK. मेरा off and on इससे occasionally हमारी बातचीत होती थी, but in 2018 we formally started meeting, we started praying together.
और कुछ और भाई भी हमारे साथ थे, आरे भाई साथ थे, और हम इस तरह से हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हुए, और हम एक दूसरे को जानते थे कि हमारा दिल एक्चुअली है क्या खुदा के काम के लिए। हमें कभी भी सेल्फ प्रोजेक्शन नहीं थी चाहिए, उसके लिए दुनियावी अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, सेकुलर प्लेटफॉर्म्स हैं। Yeah. हमारे अंदर वाकई दिल से था कि अगर खुदावंद का अगर हम काम कर रहे हैं, प्रस्तिश कर रहे हैं, खुदावंद हमें जब टैलेंट्स दिए हैं, और ये टैलेंट्स बड़ा ही प्रेशियस है, जो कि गॉड गिफ्ट टैलेंट है। Yeah. और वो जो गॉड गिफ्ट वो फिर खुदावंद के लिए, उसके जलाल के लिए एक बहुत बड़ा एक फ्रूट लेकर आ सकता है, एक बहुत बड़ा काम हो सकता है, एक बड़ा रिवाइवल लेकर आ सकता है, जो कि हम पिछले 2018 से अब तक हम देख रहे हैं कि एक बड़ी मूवमेंट, और ये बढ़ती जा रही है, ये विजन बढ़ती जा रही है, और खुदा इस चीज़ को एक्सटेंड करता जा रहा है। और वो खुदावंद के कलाम में भी एक बात लिखी है कि वो हमारी बाउंड्रीज़ को इन्हेंस करता है। Amen. तो Praise खुदा कहते God. जहाँ पे भी Yeah. तुम्हारे जूते का कदम, जूता तलवार टिकेगा, वो जगह तुम्हारी हो जाएगी। तो खुदावंद इस मुल्क में, तो खुदावंद हमें इस मिनिस्ट्री को इस्टेब्लिश किया है। ऑल ओवर यूके वी हैव ट्रैवल्ड, और खुदावंद ने बड़ा अपना जलाल ज़ाहिर किया है, हमें एज अ वेसल अपने काम के लिए यूज़ किया है। और इसके अलावा खुदावंद और भी हमारे लिए रास्ते खोल रहा है कि ये इस विजन को और इस मूवमेंट को, इस रिवाइवल को पूरी दुनिया में लेके जाया जाए। Amen. Praise Praise God. the Lord. Yeah. Praise God. And of course, you know, I personally I'm part of Yeah. the team as well. We serve जहाँ पे भी खुदावंद हमें लेके जाता है. But what is the role of worship in this movement? Obviously, it's majority worship, and of course we have the ministry of the Word of God as well. लेकिन जैसे आपने थोड़ा सा बयान किया कि हम वर्शिप के टैलेंट को यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन वर्शिप कैसे, वो जो वर्शिप का टैलेंट है इसमें एक डिफरेंस लेके आता है इन मीटिंग्स में? देखिए, हमने खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से देखा, और आई जस्ट शेयर दैट विद यू एज वेल, कि खुदावंद के कलाम में एक बंदे के लिए लिखा गया है कि मुझे मेरे दिल के मुआफिक एक शख्स मिल गया, एंड दैट वाज किंग डेविड। और वो एक वर्शिपर था। खुदावंद के कलाम को वर्शिप के थ्रू वो खुदावंद के कलाम को आगे फैलाता था, खुदावंद की हम्द व सना और सताइश करता था, और खुदा उस चीज़ को पसंद करता था। Yeah. और हैंस खुदावंद ने उसको इतना ब्लेस किया कि अपनी कौम का बादशाह मुकर्रर किया। अब जिस तरह हम अपने वर्शिप में जो काम करते हैं, व्हाट वी डू, ज़्यादातर हमारे आरिफ भाई के जो गीत देखें, दे आर टोटली फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। उसके अंदर दुनियावी कोई चीज़ नहीं होती। और खुदावंद का कलाम कहता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना खुदा के कलाम से। और वन ऑफ द थिंग्स जो मैंने और आशिर भाई ने, हम ये करते थे कि यार क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि खुदावंद के कलाम को इतनी खूबसूरती से हम पेश करें कि दुनिया उसको सुनने पे मजबूर हो जाए। हालेलुया। Hence we take the word of God through worship, कि हम वर्शिप के थ्रू इस वर्ड ऑफ गॉड को दुनिया तक पेश करें। एंड वी हैव सीन मैनी पीपल कमिंग टू द लॉर्ड। वो खुदावंद के पास आ रहे हैं, वो खुदावंद के कलाम को सुन रहे हैं, एंड अ लॉट ऑफ देम आर नॉट इवन बिलीवर्स। और इस खिदमत के वसीला से, इस मूव के वसीला से, इस काम के वसीला से खुदावंद का कलाम उनकी ज़िंदगियों तक पहुंच रहा है, एंड दे आर एक्सेप्टिंग द लॉर्ड। Praise the Lord. Asher, what do you think? How is worship playing an important role in this art of worship movement? In heart of worship, what the role as a team we are playing, worship transform lives. Amen. Yeah. Very और ये कि जिस टाइम जो वक्त चल रहा है, ये बड़ा एंड टाइम चल रहा है, एंड बीइंग अ मिनिस्टर, बीइंग अ बिलीवर, बीइंग अ बॉर्न अगेन, जब हम खुदावंद को जानते हैं और हमारी ज़िंदगी का जो मकसद है वो रूहों की निजात का काम है। Yeah. और जो वर्शिप है वो एक बहुत, खुदावंद ने वर्शिप क्रिएट की, और जब खुदा की प्रस्तिश होती है तो खुदा का तख्त लगता है, और उसमें सेल्वेशंस होती हैं, उसमें डिलीवरेंसेस होती हैं, लोग खुदावंद को, सेल्वेशन का काम होता है, लोग खुदा को कबूल करते हैं। और वर्शिप लोगों को अट्रैक्ट करती है, स्पेशली जो म्यूज़िक, जब गिफ्टेड म्यूजिशियन, जो डेडिकेटेड म्यूजिशियन होते हैं, वही फिर बात है कि रूह और सच्चाई से जब खुदा की प्रस्तिश होती है, जब उसके पीछे आपकी सेक्रीफाइस होती है, व्हेन यू स्पेंड टाइम इन प्रेयर, व्हेन यू गिव योर लाइफ, व्हेन यू डेडिकेट योर लाइफ, Yeah. and then you see the revival, then you see the fruit comes up. Yeah. अदरवाइज अगर आप सिर्फ म्यूज़िक करते रहेंगे, सिर्फ इसको एज अ आप सिंगिंग या म्यूज़िक या अपनी, अब आजकल जैसे सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, तो लोग सिर्फ कंटेंट क्रिएट करने के चक्कर में लगे हुए हैं। और दूसरा, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, हर बंदे के एक अपना विजन है, बट फॉर मी
it's beyond that actually. Yeah. कि हम अपनी Very लाइफ को sacrifice करें, अपनी titles को sacrifice करें, और that's what the heart of worship is all about actually. all about. It's not about us, Yeah. it's all about him. Praise God. Very good. Yeah. Very good. आपने एक बड़ी अच्छी बात की है जैसे आप शेयर कर रहे थे, and I'd like to take Harun's view on this as well. कि worship में ठीक है ना, we're not looking for just talents or giftings. Obviously, over the course of years, there's been many musicians that have been involved as well. People have come, people have gone. We've got a present team. तो just tell us कि आपका क्या vision होता है जब आप choose कर रहे होते हैं टीम को, क्योंकि what I know that there are people traveling from all over the world. It's current tour में we had Raskin from Canada, Yes. Nadeem from USA, and of course Sister Tamina from Pakistan, and Arif Bhai as well, and we've got others approaching us, and of course from the United Kingdom as well. But what is the vision behind? क्या कोई qualification चाहिए या क्या देखते हैं आप उस चीज़ में? Praise God. Pastor Vicky, heart of worship is all about the heart Yeah. that is linked to God. Yeah. आपका हार्ट खुदा के साथ इन ट्यून होना चाहिए. मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आप दुनिया के बेस्ट म्यूजिशियन हो सकते हैं, आप दुनिया के बेस्ट सिंगर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर खुदा का रूह नहीं, अगर आपका दिल उसके साथ इन ट्यून नहीं है, Yeah. तो आपकी वर्शिप जो है मेरी नज़र में बिल्कुल खाली. Yeah. मेरी नज़र में उस वर्शिप का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा. Yeah. फॉर दैट मोमेंट पीपल विल इन्जॉय इट, कि आप बहुत अच्छा म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा गा सकते हैं, यू आर द बेस्ट वर्शिपर, लेकिन अगर होली स्पिरिट आपके अंदर से काम हो करके, आपके अंदर से होकर लोगों की जिंदगियों में काम नहीं कर रहा, देन इट इज ऑल मीनिंगलेस. That's So, very very important. Yeah. दैट इज व्हाट वी टेक फॉरवर्ड. बहुत सारे लोग आते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस मूव का पार्ट बनना चाहते हैं, इस मूव का हिस्सा बनना चाहते हैं, स्टेज पे आना चाहते हैं, मार्शल करना चाहते हैं, बट एज ब्रदर आखिर सेड, इट्स नॉट अबाउट अस. It's not about projecting any human being. Yeah. It's not about projecting big names. It's about projecting the name of Jesus Christ. Yeah. We do all this. सब कुछ जो हम करते हैं, we do it for one audience. Yeah. हम जिस भी चर्च जाते हैं, हम उनको explain करते हैं कि we are not here to sing for you or perform for you. We are Very here good. to sing and perform for our Lord and Savior Jesus Christ, Yeah. because that is the audience that we perform for. Yeah. और इसीलिए हम ऐसे लोगों को इस टीम का हिस्सा बनाना चाहते हैं जिनके अंदर सेल्फ प्रोजेक्शन ना हो, जो अपने आप को स्टेज पे प्रोजेक्ट ना करें, बल्कि उनके दिल के अंदर ये चीज़ हो कि इट इज़ ऑल अबाउट जीसस. Yeah. So that is the only criteria. There is the only qualification that people need to have is to have the heart which is in tune with God. Praise the Lord. Praise the Lord. Now that's a very very important point. In worship, and especially जो heart of worship का vision है, it's about reigniting passion in people's life. It's about restoring life, and most importantly, it's about praying for the revival in this land. Hallelujah. And not only just in this land, Yes. but in all the lands wherever the Lord calls us. Amen. और ये vision के लिए I believe कि we don't just need talent, we need gifting. Amen. But that is not to say that talent is not, respected. Talent has its own respect. God gives us the talent. He gives us the talents. But that talent is secondary to the anointing. Amen. जो मसा है, Amen. Yeah. जो मखसूस किया जाना है खुदावंद के इस काम के लिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके कि हम टैलेंट्स की तलाश में निकल पड़े. क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं, ये एक काम सिर्फ लोगों को जाके, जैसे कि आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया, कि गीत सुनाना नहीं है या एक परफॉर्मेंस करना नहीं है, बल्कि ये काम वो है कि लोग उसके साथ इन्वॉल्व हों, जिंदगियां बदलें, जिंदगियां तब्दील हों, और वो सारी जिंदगियां जब तब्दील होंगी तो ही इस मुल्क में, हमारी ज़िंदगी में रिवाइवल का, बेदारी का काम होगा. Now, Asher, you've been part of this, since the inception. शुरू से आप इसके पार्ट रहे हैं. आपके लिए थोड़ा सा मुझे बताएं कि कैसा महसूस होता है जब आप उधर चर्चेज में आगे पीछे आप वर्शिप कर रहे होते हैं. आपके दिल में क्या चल रहा होता है, आपके माइंड में क्या चल रहा होता है, आपकी स्पिरिट में क्या फील हो रहा होता है? Actually, this is what I wanted to do, and जो कि believer की, हर Christian की life का purpose है to glorify Him with our different talents. हर बंदे को खुदा ने different talents हैं, different capacities खुदा ने लोगों की ज़िंदगियों में दिए हैं, जो हर different तौर पे खुदा को serve कर रहा है. And for me,
मैं जैसे हम लोग जब अब ट्रैवल भी कर रहे होते हैं, वी जस्ट ट्राई टू स्पेंड मैक्सिमम टाइम इन प्रेयर। 1-2 घंटे जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो कोशिश होती है कि हम ज़्यादातर खुदा की हजूरी में वक्त गुजारें, ताकि हम खुदा में एज अ वैसल यूज़ करें। एंड आई रियली वांटेड टू बी अ वैसल, नॉट अ वर्शिप लीडर, और आई वांटेड टू बिकम अ वर्शिपर। जब पीपल लोग मुझे देखें, बल्कि खुदा की लोग मुझे ना देखें, बल्कि खुदा की हजूरी को लोग फील करें। जो मैं बात करूं वो लोगों के साथ कनेक्ट हो। और आई डोंट केयर अबाउट कितने मैं स्किलफुली गिटार प्ले करूं या स्किलफुली मैं गा रहा हूँ। आई रियली वांट टू प्रेज द लॉर्ड। जो मेरे अंदर से निकल है फुल पैशन के साथ, फुल ज़ील के साथ। आई रियली, मेरी यही होती है कि मैं लोगों की तरफ देख के नहीं गा रहा हूँ, तो कि लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। आई रियली वांटेड, जब भी मैं वर्शिप करता हूँ, कि मैं खुद खुदावंद के साथ इन्वॉल्व हूँ, खुद मैं अंदर से फील करूँ खुदा की हजूरी को। एंड फॉर मी वर्शिप इज़ अ वॉरफेयर। हम हर रोज़ एक बिलीवर जो एक लाइफ गुजारता है वो एक वॉरफेयर है। सो फॉर मी आई जस्ट टेक इट एज अ वॉरफेयर। और खुदा के साथ कनेक्ट होना, और खुदा फिर विजन्स देता है, खुदा शिफात करवाता है। एंड you know, for me, Praise the Lord. That's very, very powerful. Praise God. कि worship एक warfare है. yeah. And when you take worship as a warfare, Yeah. everything changes. I feel the concept of worship के सिर्फ हमने गाना है, बजाना है और लोगों को खुश करना है, वो बदल जाता है. Amen. Harul, what do you want to add? Praise God. I totally agree with you. Worship is a warfare. Yeah. And one of the things we need to understand for warfare, you need to be ready. हमें prepared रहना पड़ता है, हमें हर वक्त ready रहना पड़ता है. और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारी इस आर्मी में खुदाओं के फजल से इजाफा ही होता जा रहा है. Amen. Praise the And Lord. God is bringing people by His Holy Spirit's conviction. हमें कहना नहीं पड़ रहा है इसके अंदर लोगों को. और जिस तरह आपने अभी कहा कि इट्स अ वॉरफेयर के लिए यू नीड टू बी इक्विप्ड विद द आर्मर ऑफ गॉड. अगर आप इक्विप्ड नहीं हैं, इफ यू जस्ट गो टू द बैटल फील्ड अनप्रिपेयर्ड, व्हाट्स गोइंग टू हैपन? क्या होगा? शैतान आप पे हमला करेगा और हावी हो जाएगा. तो कैसे equip होते हैं? Let's just talk a little bit about कि worship warfare है. We established और जो लोग ये देख रहे हैं उनके लिए भी ये जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, it's very, very important. And by the way, I just want to say that this is not इसकी हमने पहले ट्राई नहीं की. This is quite live. I'm putting these guys on the spot. तो ये जो आपने पॉइंट रेस किया है कि हमें रेडी होना चाहिए, equip होना चाहिए. How do you equip yourself for this big movement like Heart of Worship, going to places जहाँ पे जाके इतने बड़े programs होते हैं, and I've seen the Spirit of God move. उन चीज़ों के लिए equip होने के लिए क्या करना चाहिए? रोज़े रख काफ़ी सारी चीज़ें. बिल्कुल, आपने पहला पॉइंट तो खुद ही बोल दिया, रोज़े रखने चाहिए. बिल्कुल, खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपने शागिर्दों को एक दफ़ा कहा, को एक बदरू उनसे निकाली नहीं जा रही थी. उन्होंने कहा ये ऐसी जो किस्म है वो दुआ और रोज़े के बगैर नहीं निकलती. व्हेन यू आर इन वॉरफेयर यू नीड टू बी इक्विप्ड. देखें, सिंपल सी बात है, आप क्रिकेट खेलते हैं, अगर आप एक अच्छे टूर्नामेंट के लिए तैयारी करते हैं, यू नीड टू प्रिपेयर, यू नीड टू प्रैक्टिस, यू नीड टू मेक योर सेल्फ रेडी. आप अपनी वीकनेसेस के ऊपर ओवरकम करते हैं, आप सीखते हैं, देखते हैं कि कौन सी आपकी वीकनेसेस हैं, किस तरीके से उनको ओवरकम किया जा सकता है. दुआ और रोज़ा इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स. और खुदावंद का शुक्र है, इस जो हमारा इस वक्त का ये मीटिंग्स हो रही हैं, और मैं इसको टूर नहीं कहूँगा, बिकॉज बाय द कन्विक्शन ऑफ होली स्पिरिट दिस इज़ नो लॉन्गर टूर्स, दिस हैज़ बिकम अ मूव. एंड वेरी सून दिस मूव इज़ गोइंग टू ओवरटेक द होल वर्ल्ड. और इस मूव की तैयारी के लिए खुदावंद ने हमारे दिलों को तैयार किया कि हम सुबह सुबह उठ के बैठ के खुदावंद की प्रस्तिश करें, उसकी दुआ करें, उसके हजूरी में ठहरें, उसके कलाम को अपने अंदर जगह दें. और जब खुदावंद का कलाम हमारे अंदर आता है तो वो हमारी कमज़ोरियों को, हमारी वीकनेसेस को पॉइंट आउट करता है और उनको दूर करता है. और जब हम उसकी हजूरी में एवरी डे प्रस्तिश करते हैं, इबादत करते हैं, दुआओं में और रोज़ों में ठहरते हैं, तब वो वीकनेसेस हमारे अंदर से दूर होती हैं और हम उस वॉरफेयर के लिए तैयार होते हैं जिसके लिए खुदावंद ने हमें बुलाया है, जिसके लिए हमें ये कॉल दी है खुदावंद ने, जिसके लिए खुदावंद ने हमें ये विजन दिया है. सो इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि हम अपने आप को रेडी रखें. और खुदावंद के जो रूह है, खुदावंद का रूह, खुदावंद के जिंदा कलाम के वसीला से हमारे अंदर वो तैयारी पैदा करता है. एवरी सिंगल डे देयर इज समथिंग डिफरेंट. कुछ फ़र्क खुदावंद के कलाम में से सीखते हैं, जो आगे हम ये भी देखते हैं कि जब मीटिंग्स होती हैं तो वही बातें आगे आ रही होती हैं.
प्रेज गॉड। और और प्रोफेटिकली भी मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि खुदावंद हमें ऑलरेडी कुछ चीज़ें प्रोफेटिकली दिखा देता है कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। बिल्कुल, बहुत सी चीज़ें हमें प्रोफेटिकली पता चल जाती हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो इट्स वेरी वेरी वाइटल कि आप अगर पुरस्कार हैं और स्पेशली अगर आपको ये टैलेंट, आपको ये तोड़ा दिया गया कि आप खुदा की खिदमत कर रहे हैं स्टेज से, ठीक है, स्टेज से खुदा की खिदमत कर रहे हैं, उसमें आपकी पर्सनल डिवोशन लाइफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें वो फ़कीर और फरीसियों की तरह हिपोक्रेट नहीं बनना कि भाई स्टेज पे कुछ और प्राइवेट लाइफ में कुछ और चल रहा है। हमने वो बनना है कि खुदावंद का बर्तन जिसे खुदावंद ने अपनी पाक रूह से मामूर किया हुआ है। और वो मैं क्लियरली ये कहना चाहूँगा, वो सिर्फ एक दिन में नहीं आता, वो 2 दिन में नहीं आता, वो उस दिन नहीं आता कि यार आज इवेंट है तो आज हम दुआ करते हैं, आज कहीं जा रहे हैं तो आज मिलके 3 घंटे दुआ कर लेते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि रोज़ की दुआ चाहे आप 1 घंटा करें या आधा घंटा करें, लेकिन मुसलसल अगर आप लगातार रोज़ दुआ करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है कि हम 10 घंटे एक दिन गुजार दें। क्योंकि हमें वी हैव टू स्टे कनेक्टेड टू द वाइन, वी हैव टू स्टे कनेक्टेड टू द वाइन कंटिन्यूली। ये नहीं कि जब हमें खुदा से कुछ चाहिए तो उसके हुजूर में रोज़ा भी रख लिया, दुआ भी कर लिया, और बाकी सारा साल जो है हम सिर्फ जो है ना, परहैप्स मैं कह सकता हूँ ऐश करते रहे हैं स्पिरिचुअली, ठीक है, और ज़्यादा कुछ स्पिरिचुअल हमने डिवोशन नहीं रखा। तो ये तो वही बात आ गई कि जब ज़रूरत पड़ती है तो खुदा से कुछ मांग लिया और उसके बगैर उसको तो मुंह भी नहीं दिखाया हमने अपना। सो प्रेज द लॉर्ड। आशर and Arun, it's to both of you, and any of you can answer this. I want you to share in closing कि दो चीज़ें, एक कि कुछ हमें बताएं कि what's God's been doing through this last events that we have done. Now we are as we are recording, we've got few more to go, the last weekend to go, और काफ़ी हो भी चुके हैं, लेकिन कुछ highlights बताएं, what is God doing, हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं इन इवेंट्स में, इन मीटिंग्स में। Praise God. Pastor Vicky, these meetings have been amazing. Yeah. These meetings हम इनको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते क्योंकि मीटिंग्स में, हर एक मीटिंग्स में इतनी टेस्टमनीज थी that we cannot share. But I'd like to share this with our audience कि खुदावंद यूके में एक बहुत बड़ा काम कर रहा है और हमारी समझों और सोचों से बढ़ के कर रहा है। हमारी मीटिंग्स में कई बार ऐसा होता है कि लोगों के लिए हाथ भी नहीं रखे जाते, दुआ भी नहीं की जाती, पीपल आर गेटिंग हील्ड, people are getting filled with the Holy Spirit during the meetings, people are actually getting blessed, जो उनके अंदर परेशानियां मुश्किलें चल रही होती हैं, खुदावंद वर्शिप के दौरान ही वो चीज़ें हील करना शुरू कर देता है। और जब कुछ लोग आगे भी आ रहे हैं तो ऐसी ऑर्गेनिक टेस्टमनीज में मिल रही हैं जिसमें कुछ ऐसे बच्चे नौजवान हैं जो सही तरीके से उर्दू, पंजाबी, हिंदी समझ भी नहीं सकते, लेकिन जब प्रस्तुति की जा रही है तो वो कहते हैं हमें सब कुछ समझ आ रहा था। जब प्रस्तुति की जा रही है वो रूल कुदरत से मामूर हो रहे हैं, वो आगे आ रहे हैं अपने टूटे अल्फाजों में, वो खुदावंद के नाम की हम्दो सना और सताइश और उसकी गवाही दे रहे हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन यूके एट दिस वेरी मोमेंट एंड आई एम एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि दिस इज नॉट जस्ट बीन हैपनिंग इन वन मीटिंग, इट हैज बीन अ कंटिन्यूअस थिंग दैट हैज बीन हैपनिंग इन ऑल द मीटिंग्स जो अभी तक यूके में हुई हैं। और बस मैं आप लोगों से भी दरखास्त करता हूं कि इन मीटिंग्स को अपनी प्रेयर में रखें। इफ यू कैन जॉइन दीज मीटिंग्स, जॉइन विद योर होल फैमिलीज, क्योंकि नौजवान बरकत पा रहे हैं, खानदान बरकत पा रहे हैं, लोगों के मैरिटल रिलेशंस रिस्टोर हो रहे हैं। खुदावंद ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसको हमारे अपने बयान से बाहर है। जिस तरह मैंने पहले आपको कहा था कि ना हम उसकी सोच करते हैं और खुदा ऐसे बड़े बड़े काम करते हैं, ना उसकी उम्मीद करते हैं और टेस्टमनीज पर टेस्टमनीज लोग देना चाहते हैं। लोग इस मूव के अंदर शामिल होना चाह रहे हैं, लोग बार बार हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि प्लीज टेल अस हाउ कैन वी अ पार्ट ऑफ दिस मूव, वी वांट टू सपोर्ट यू, वी वांट टू सपोर्ट यू फाइनेंशियली, वी वांट टू सपोर्ट यू विद आवर वर्क, विद आवर एफर्ट्स। दिस इज अमेजिंग फॉर मी, दिस इज मिरेकल ऑफ गॉड, ओनली गॉड कैन डू दिस। Praise God. I mean, मेरे हिसाब से just on the final few weeks, you know, to go, so a few meetings to go. लेकिन कुछ जो last meetings हैं, we've had thousands of people come through those meetings, thousands of people, and I can't say कि किसी single meeting में खुदावन ने अपना जलाल जाहिर ना किया। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि खुदावन ने जो हमें हमारे
जिन्हें मैं कहना चाहूँगा जो हमारे प्रिंसिपल वर्शिप लीडर हैं आरिफ भाई, और उनके साथ सिस्टर तमीना, ठीक है, जो इसमें हमारी सारी रहनुमाई करती हैं मीटिंग्स में, वर्शिप में, ठीक है। खुदावंद उनको बहुत बहुत ज़ोर से इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ तक कि गाड़ियों में जाते हुए भी उनको नए गीत मिल रहे हैं, ठीक है। शॉपिंग के दौरान उनको नए गीत मिल रहे हैं, और ऐसे गीत जो रिवाइवल के बारे में, बेदारी के बारे में है, और खुदावंद उनको इस्तेमाल कर रहा है बहुत ज़ोर से। अगर मैं एक हाईलाइट देना चाहूँ तो आखिरी जो हमारी मैनचेस्टर में मीटिंग थी, वहाँ पे जो खुदावंद ने काम किया उसका सारा जलाल खुदावंद को जाता है, और बहुत से लोगों को खुदावंद ने छुटकारा दिया, ठीक है। ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द प्रीवियसली वी कैनॉट just share everything out openly, but I can tell you the Lord has set people free from a lot of things, a lot of things. People getting baptized, speaking in tongues there and then. उसी वक्त खुदावंद उनको पाक रूह के बपतिस्मा दे रहा है, और वो गैर ज़ुबानों में दुआ कर रहे हैं, और खुदावंद बहुत बहुत ज़ोर से जो है काम कर रहा है हर सिटी में, हर टाउन में, जहाँ जहाँ पे हार्ट ऑफ वर्शिप की मीटिंग्स हो रही हैं। आशर, What's been the highlight for you so far, मुख्तसर साहब बताएं मीटिंग्स में? For me, actually, every meeting is different. It has a different experience. Yeah. And कई बार हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन ईमान की आंखों से देख सकते हैं. Of course, खुदावंद बड़े miracles कर रहा है, as you have mentioned. You have both have mentioned the highlights कि कैसे रूहों की निजात का काम हो रहा है, लोग खुदा के पाक रूह से मामूर हैं, लोग हील्ड हो रहे हैं, डिलीवरेंसेस हो रही हैं. बट स्पिरिचुअल रैलम में एक बहुत बड़ी प्रेपरेशन भी हो रही है. जब हम वर्शिप को डिक्लेयर करते हैं, जब हम ये सारी इस मूवमेंट के साथ निकले हैं, हम अपने छोटे बच्चों के साथ एक एफर्ट करके जब जा रहे हैं, और हर एक के अंदर हम ऑलमोस्ट वी आर मोर देन 20 we are 25 people who travel together in cars, and जिसमें बच्चे भी होते हैं, और खुदा हमें स्ट्रेंथ देता है. हम देख रहे हैं खुदा के इस बड़े हाथ को भी, जिसमें हम सो भी नहीं रहे हैं, हम ड्राइव भी कर रहे हैं, मिनिस्ट्री भी कर रहे हैं, और खुदा का हाथ हम देख रहे हैं कि खुदा में कैसे हमारी मदद कर रहा है. और स्पिरिचुअल रैलम में खुदावंद एक बहुत बड़ा जलाल जाहिर कर रहा है, और एक बहुत सिर्फ ये बातों की हद तक रिवाइवल हर तरफ ये बात हो रही है. बट वी नो, क्योंकि हम पिछले 5 महीने से हम सब लोग दुआ में भी वक्त गुजार रहे हैं, और जो प्रोफेसीज हो रही है वो हमें डिफरेंट लोगों से कन्फर्मेशंस भी हो रही हैं अपने चर्च पास्टर्स के थ्रू भी. रिसेंटली हम जब लीडरशिप रिट्रीट पे भी गए, तो वहाँ पे भी हमने देखा कि वो सारी चीज़ें कैसे लिंक्ड हो रही थी. तो ये वाली जो मूवमेंट है, जो ये टूर्स चल रहे हैं, ये खुदावंद के एक डिवाइन प्लान में है, और ये एक बहुत बड़ा काम हो रहा है, जो कि हम हमारी आने वाली जनरेशंस भी देखेंगी, वो टेस्टिफाई करेंगी कि खुदावंद ने एक बहुत बड़ा काम किया है. Praise God, Amen. praise God. And we're going to close now, and in closing we just want to say and reiterate this, that Heart of Worship is a movement. It's a movement not to build a congregation. It's a movement not to build our name, okay? या हरून का नाम, या आशर का नाम, या इवन मैं ये भी कह सकता हूँ, या पास्टर आरिफ का, सिस्टर तमीना का नाम, ठीक है. हार्ट ऑफ वर्शिप इज अ मूवमेंट टू ग्लोरीफाई ओनली वन नेम, एंड दैट्स द नेम ऑफ जीसस. और इसके एम्स क्या हैं? उसके एम्स ये हैं कि रूहें बचे, लोग खुदावन की तरफ आएँ, और एक दफा फिर बेदारी आए, ना कि सिर्फ हमारी अपनी जिंदगियों में, बल्कि पूरी दुनिया में. हालेलुया. सो दिस इज व्हाट हार्ट ऑफ वर्शिप इज, एंड दिस इज the heart behind the heart of worship. So Arun, Asher, do you guys want to say any final words as we close? I would like to add something. It just got put in my heart. Praise that जिन भी हम इवेंट्स पे जा रहे हैं, जहाँ पे भी मीटिंग्स हो रही हैं, यंग जनरेशन में, बच्चों में, टीनेजर्स में एक बहुत बड़ा काम हो रहा है, जो कि निगलेक्ट हो रहे हैं. क्रिश्चियन बच्चे जो बिलीवर्स, यानी कि क्रिश्चियन चर्चेस में आप जाएँ, बच्चे जो हैं, टीनेजर जो है, वो खुदावंद से दूर है. और इस टाइम में जब आरिफ भाई को खुदा ने जो विजन दिया कि बच्चों के लिए उनको ब्लेस करते हैं, पेरेंट्स भी बच्चों को आगे लेकर आ रहे हैं, और इवन हमारे बच्चे, मेरे बच्चे इतने छोटे हैं, यानी मेरा बेटा तब 9 साल का था, बेटी 7 साल की थी आने, और एशिया वो खुदा के पाक रूह से मामूर हो गए. हारून भाई के बच्चे खुदा के पाक, एजरा डैनियल, वो खुदा के पाक रूह से मामूर हुए. और इस तरह बेशुमार हंड्रेड्स की यानी कि एक तादाद में बच्चे खुदा के पाक रूह से मामूर हो रहे हैं. और ये जो खुदा के कलाम का बीज उनकी ज़िंदगी में, जो कनेक्शन उनका होली स्पिरिट के साथ हुआ है, ये लाइफ टाइम उनके साथ चलेगा, और ये मल्टीप्लाई होता जाएगा, और यही बच्चे कल को बड़े खादिम बनेंगे. और ये जनरेशन खुदावंद एक खड़ी कर रहा है अपने जलाल के लिए, उस बड़े रिवाइवल के लिए.
Praise Yeah. God. Yeah. Praise the Lord. Harun, anything to say in the end? I just want to say कि ये जो कुछ भी हो रहा है, it's God grace upon us, Yeah. Hallelujah. and we should not take this grace lightly. Mhm. जो खुदा ने तोड़ा आप लोगों को दिया है, प्लीज यूज इट फॉर हिज ग्लोरी, क्योंकि इफ यू विल नॉट, then God will ask you this question: what have you done with the gift that I gave to you, Yeah. my son, my daughter? Don't make yourself in that position कि आपको खुदावंद के तख्ते अदालत के सामने खड़ा होना पड़े, बल्कि come to him with all your heart, all your mind, all your strength. Praise the Lord. Guys, thank you so much for your time today. Thank you so much for sharing the heart behind Heart of Worship. And we really hope that this would be a talk that's not just teaching, but a talk that will just show you the heart behind the Heart of Worship. So God bless you all. Thank you for watching. And we will be back with another episode of Baatcheet.